Hello friends, in this video we are with the topic of motion in vertical circle. Motion in vertical circle. Okay, the topic is from the chapter of forces, but I am covering this topic now because it requires some understanding of conservative forces. ठीक है, इसलिए इसको तब नहीं कराया. एक बार अब जब आप कंजर्वेटिव फोर्सेस का कंसेप्ट समझ गए हो, नाउ वी कैन डू दिस टॉपिक. So, what is the system of the topic? Topic के अंदर there is a string which is attached to a mass and the mass is moved in a vertical circle. This will be horizontal circle, this will be vertical circle. So, here we have a body of mass m moving in a vertical circle. Air resistance, like always, is neglected in this. Okay, so if we neglect air resistance, the only force that is acting is gravitational force, and gravitational force is conservative in nature, right? Because gravitational force is conservative in nature, the total energy remains conserved. The total mechanical energy remains conserved. That means the sum of kinetic energy and potential energy, they will remain same. यानी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता हुआ नीचे से ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा, उतने ही अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा. When it goes from top to bottom, it will decrease its potential energy, but the kinetic energy will increase by same amount, because एनर्जी सिस्टम से बाहर कहीं नहीं जा रही है. एनर्जी सिर्फ पहले थोड़ी पोटेंशियल थी, अब थोड़ी काइनेटिक हो जाएगी, फिर थोड़ी काइनेटिक कम ज्यादा इसी तरह से होता रहता है. Right? So I have caught hold of the particle at this point A. The bottom point is O and the top point of this circle is point B. What is the radius of this circle? Radius of the circle is R. यानी जो string है आपकी उसकी length भी कितनी होगी? It will be R. Now, at this point O, as a matter of reference only, I am taking potential energy to be 0. ठीक है, देखो पोटेंशियल एनर्जी जब भी आप कैलकुलेट करते हो ना, तो आप सिस्टम के अंदर स्टोर जो एनर्जी है उसे कैलकुलेट कर रहे होते हो, राइट? तो व्हाट इज हैपनिंग दैट व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट, इट हैज गॉट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एनर्जीज, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, सो मच. ओके, यू कैन नॉट कैलकुलेट, इन सब का एक साथ हिसाब रखना पॉसिबल नहीं होता. तो हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं. पोटेंशियल एनर्जी के केस में एनी वन पॉइंट इज चोजन एंड दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट, एंड एट दैट रेफरेंस पॉइंट वी कैन टेक पोटेंशियल एनर्जी टू बी इक्वल टू 0. नॉट ओनली इन दिस केस बट इन अदर केसेस ऑल्सो. You can see that when potential energy is described at certain point, we take it as equals to 0. जैसे हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं से भी जब हम ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का, समटाइम्स वी ड्रॉ इट एट द सेंटर, समटाइम्स वी ड्रॉ इट एट द कॉर्नर, बट दिस पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मीट, वो क्या होता है, हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, ओरिजिन होता है. तो ओरिजिन को हम कभी ग्राफ में बीच में ले आते हैं, कभी साइड में ले जाते हैं. उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी को भी आप एज ए मैटर ऑफ रेफरेंस कहीं भी 0 कर सकते हो. ओके, सो हियर आई हैव मेड द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0 एज ए मैटर ऑफ reference. How many forces are acting on this mass? Gravitational force in downward direction, okay, which can be resolved as mg cos theta and mg sin theta. Why? Because now this is making an angle theta with respect to the vertical direction. The other force that is acting is the tension force of the string, that is this. And one more thing, because ये एक circle पे घूम रहा है, तो it is सेंटीपिटल फोर्स विल ऑल्सो कम इन टू एग्जिस्टेंस. अभी सेंटीपिटल फोर्स अपने आप में तो कोई फोर्स होता नहीं है, यहीं से कुछ फोर्सेस आपस में मिल मिला के जुगाड़ करके और सेंटीपिटल फोर्स का रोल प्ले करते हैं, राइट? सो लेट अस गेट स्टार्टेड एट speed at height h. The first thing I am going to calculate is the speed of this particle when it is at height h. Height h कहाँ से measure होती है? Reference point से. यानी when I say the height of mass m is h, it is a height h above the reference point. So, because all the forces are conservative, kinetic energy plus potential energy at point O will be equal to kinetic energy and potential energy at point A.
और भी लिख सकते हो, यू कैन राइट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, मतलब आगे इक्वल टू लिख सकते हो, यहां पे जो टोटल एनर्जी है, यहां पे जो है, यहां पे जो है, यहां पे जो है, यहां पे जो है, बीच में कहीं भी द टोटल एनर्जीज विल ऑलवेज बी इक्वल, राइट? सो आई एम कंपेयरिंग 2 पॉइंट्स, which point O and point A. काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट O, इनिशियल स्पीड यहां पे कितनी थी? u, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिया है कितना? 0। एट दिस पॉइंट A, suppose the speed of particle is v, so kinetic energy is half mv square and potential energy कितना होता है? mgh, this is mgh। अभी इक्वेशन में थोड़ी इसके कान मरोड़ने हैं, इक्वेशन के हाफ को यहाँ पे 2 कर दो, उसके बाद में m तीनों में कैंसिल कर दो, एंड व्हाट यू गेट इज दिस u square minus v square plus 2gh. From here you can find the value of v, u square minus 2gh under a square root. Okay, it's the first thing. Second thing, tension at height h. अभी देखो यहां पे when the particle is at point O, टेंशन मैक्सिमम होगी, पॉइंट B पे टेंशन कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, बट आई विल हैव टू फाइंड द टेंशन एट एनी गिवन पॉइंट। आई विल कैलकुलेट द टेंशन एट एनी गिवन पॉइंट। सो लेट अस टेक दिस लाइक दिस। अभी देखो सेंटीपिटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r। कौन कौन से फोर्सेस हैं यहां पे जो सेंटीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर सकते हैं? वन इज अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज पॉजिटिव tension force. One force is away from the center, mg cos theta, that is away from the center, right? From here I can calculate t, mv square by r plus mg cos theta. Now in this diagram, this is theta. Can I find the value of cos theta? Adjacent side upon hypotenuse. So for this theta, adjacent side is this r minus h, and this is the hypotenuse. कितना measurement है? Equal to the radius. So cos theta is written as r minus h upon r, and here the value of v square, यहां से कॉपी कर ली, v स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट कर दी, u स्क्वायर माइनस 2gh। अभी फिर से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, m अपॉन r इधर भी है, m अपॉन r इधर भी है, टेक इट एज कॉमन, u स्क्वायर माइनस 2gh प्लस gr माइनस gh। Okay, minus 2gh minus gh minus 3gh, and this is the equation of tension. ठीक है, अभी कहीं भी टेंशन फाइंड करनी हो, सो बोले कि आप सर मुझे यहां पे इस पॉइंट पे जो टेंशन है वो फाइंड करके बताओ। ठीक है, तो यहां से यहां की आप हाइट मेजर करेंगे, एंड दैट हाइट यू विल पुट इट ओवर हियर, टेंशन का पता चल जाएगा, राइट? तो दो इक्वेशंस मैंने डिराइव की, एक स्पीड एट एनी हाइट, दूसरा टेंशन एट एनी हाइट। ओके, अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं पॉइंट O और पॉइंट B पर, राइट? अभी पॉइंट O पर व्हाट इज हाइट? हाइट इज 0 एट पॉइंट O, हाइट इज 0। सो व्हाट इज द टेंशन एट दिस पॉइंट? यहां पे टेंशन कितना होगा? इन द इक्वेशन ऑफ टेंशन पुट h इक्वल्स टू 0, यहां पे इसको 0 कर दो, व्हाट यू गेट इज u स्क्वायर प्लस gr, दिस इज द टेंशन। अच्छा, फिर कोई बोले कि भाई यहां पे जो स्पीड है वो कितनी है? तो वो तो मुझे पहले से ही पता है भाई, हाउ मच स्पीड आई हैव गिवन टू इट, इनिशियल स्पीड, सो स्पीड एट पॉइंट O इज इक्वल्स टू u, राइट? नाउ एट पॉइंट B पे आ जाते हैं। एट पॉइंट B यहां से स्टार्ट किया, यहां पहुंचे, सो व्हाट इज द हाइट? यहां से यहां तक हाइट इज r, यहां से यहां तक हाइट इज अगेन r, सो व्हाट इज द हाइट? इट इज 2r। सो हियर पुट h इज इक्वल्स टू 2r। टेंशन की जो इक्वेशन है, यू पुट h इज इक्वल्स टू 2r, and then you solve it, m by r u square minus 5gr. When you solve it, this will be the tension at point B. What will be the speed at point B? अरे कुछ नहीं है भाई, ये जो स्पीड की इक्वेशन है ना, इसमें फिर से h is equals to क्या रख दो? 2r रख दो, and that will be the expression of speed, right? तो it seems very easy, दिखने में समझाने में बड़ा easy लगता है, but when you do it, it will be a little bit difficult, थोड़ा सा difficult है ये topic, right? I will continue this topic in the next video also.